सलिलस्य यथा शरत्, इसका अनुवाद और भावार्थ पढ़ सकते हैं कन्नड़ में? अभिराम प्रवीण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಕನ್ನಡ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಅನುವಾದ. ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಅವತಾರವು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹಗಳಂತಹ ಐಕ ಸಂಸರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೊಳಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮಳೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಭಗವಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದವನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪತಿತಾತ್ಮರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾರದರು ಅಥವಾ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ನಾರದರು ಮಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾಯಾ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲನು. ರಾಡಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮಳೆಯಂತೆ ಎಂಬ ಉಪಮಾನ ತುಂಬಾ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ರಾಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ವೀಜ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಡಿ ನೀರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನದಿಗಳಂತಹ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ಇತರರನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಲಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಕೃಷಿಯಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುದು. ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಾರದರು, ಶುಕಮುನಿಗಳು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, 6 ಜನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅನಂತರ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಾಸ್ಯ, ಸ್ನೇಹ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ದಿವ್ಯ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಾರದರಂತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಐಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಬಡಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸಂಚಿತವಾದ ಐಹಿಕ ಕಾಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ.
ಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಹಠಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗಡ ತಿಳಿಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕದಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಮನಸ್ಸು ಕದಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಾಡಿಯಾಗುವುದರ ಗಂಡಾಂತರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಮಾಯೆಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और कल हमने जिस श्लोक की चर्चा की थी, दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 4, आज हम श्लोक संख्या 5 लेंगे। और पहले हमने कल संक्षिप्त रूप से श्लोक संख्या 1, 2 और 3 का भी चर्चा किया था। आज का श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। जब भगवान का नाम स्वरूप जो कि श्रीमद् भागवतम है, वो एक भक्त के हृदय में प्रवेश करता है और जो प्रेम पूर्वक, जो भगवान के साथ प्रीति पूर्वक जो संबंध है, उसको एक कमल के समान बताया गया है, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। इस प्रकार से सारा जो भौतिक हमारा कल्मश है वो दूर होता है। भौतिक कल्मश जैसे काम, क्रोध, मोह, और इस प्रकार से ये कार्य करता है जैसे कि जब बारिश आती है और जलाशय पे गिरती है तो उसकी जो सारी मिट्टी है वो निकल जाती है, क्योंकि उसमें नया पानी प्रवेश करता है। तो आज के हिंदी में ये इस प्रकार से आज के श्लोक का अनुवाद है। सभी से आशीर्वाद की आकांक्षा है कि मैं कुछ श्रील प्रभुपाद से जो कुछ सुना है आपके सामने उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर पाऊँ। तो ये श्लोक 2.8.5 इन 3 श्लोकों की जो श्रृंखला है 4, 5 और 6, उसमें ये मध्य वाला श्लोक है। कल हमने 4 की श्लोक संख्या 4 की चर्चा की थी। इसमें सर्वप्रथम जो प्रभुपाद जी ने श्लोक का अनुवाद दिया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले तो श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप बताया गया है। ये पहले भी श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में इसकी चर्चा हुई है। ये पहले स्कंद का 3रा अध्याय, भगवान के बहुत से अवतारों की चर्चा की गई है, उसमें बताया गया है श्लोक संख्या 43 में कि इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, इदम श्रीमद् भागवतम, ये परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, पुराणम ब्रह्म संहितम, उनसे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम भी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। यहाँ तक कि प्रभुपाद बताते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम को भगवान का जो मंदिर है उसमें रख के और उनकी लोग आरती कर सकते हैं, जैसे हम रोज भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं, क्योंकि भागवतम और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, ये यहाँ पे बताया गया है। और आगे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये एक भक्त के, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, सेल्फ रियलाइज्ड, उसके हृदय में जब ये भागवतम प्रवेश करता है, इसमें प्रभुपाद जी ने नहीं बोला सिर्फ भक्त, आत्म साक्षात्कारी भक्त। इससे क्या अर्थ होता है? जो भगवत गीता के 2रे अध्याय में बताया गया है
पहले के जो 30 श्लोक हैं उसमें आत्मा की परिभाषा दी है भगवान ने कि जीव का स्वरूप क्या है। जीव एक आत्मा है, सर्वशुद्ध आत्मा है। तो जब ये भौतिक रूप से जब हम इस शरीर से अपने आप को जोड़ते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, उस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको ये बोध नहीं हो सकता, उनके हृदय में श्रीमद् भागवतम का प्रवेश नहीं हो सकता। तो भागवतम को समझने के लिए पहले हमें भगवत गीता को समझना होगा, और विशेषतया अध्याय 2 जिसमें कि एक जीव की परिभाषा दी गई कि हमारा स्वरूप क्या है। सबसे पहले हम आत्मा है। So we have to unmute. सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि हमारा स्वरूप है, मैं का विशुद्ध आत्मा है, और उसके बाद हम लोग इस समझ पे आते हैं कि हम ना सिर्फ आत्मा है, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप समझते हैं वो तो कोई भी आत्म साक्षात्कारी, भले ही वो ज्ञानी हो चाहे योगी हो, उनको भी ये बात समझ में आ जाती है। तो भगवान श्री प्रभुपाद बताएं 3 प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। उसमें होते हैं ज्ञानी और योगी और भक्त। ज्ञानी और योगी की श्रेणी जो है वो पहले वाली श्रेणी है, जिसमें उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि वो एक विशुद्ध आत्मा है। परंतु जो भक्त होता है वो उससे कहीं आगे बढ़ चढ़ जाता है, क्योंकि उसको ना सिर्फ इसका ज्ञान होता है कि मैं एक आत्मा हूं, परंतु ये भी ज्ञात रहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। जैसे चैतन्य चैतन्य में बताया गया, जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और उसके बाद जब आत्म साक्षात्कारी भक्त के हृदय में श्रीमद् भागवतम का संदेश पहुंचता है, तो यहाँ पे लिखा है कि उसके हृदय से जो भी कल्मश है इस भौतिक संसार का, हम जो जिस प्रकार से हम लोग तो हैं, हम लोग भगवान की अ, पराशक्ति हैं। भगवान की 2 शक्ति हैं, परा और अपरा। पर पराशक्ति होने के बावजूद हम में ये इस प्रकार का एक रुझान रहता है कि हम बार बार भगवान की अपरा शक्ति से अपने आप को जोड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और इस शरीर से संबंधी जो भी मेरा है, घर बार स्त्री पुत्र धन इत्यादि, वो सब मेरा है। तो हम भगवान की अपरा शक्ति जो भौतिक मेटेरियल एनर्जी है उससे हम प्रभावित होकर वहां पे गिर जाते हैं। परंतु श्री भागवतम के श्रवण से हृदय के सारे कलमश दूर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, काम लोभ क्रोध इत्यादि। और फिर अंत में प्रभुपाद बताते हैं कि ये भागवतम कैसे काम करता है, इसका श्रवण जैसे कि जब शरद ऋतु होता है, गर्मी के बाद जब सारे जलाशय भर जाते हैं पानी से, परंतु उनमें क्या होता है कि मिट्टी का अंश रहता है, उनका पानी साफ नहीं होता है। तो उसके बाद जब बारिश आती है शरद ऋतु की, तो सारे जलाशय में जो भी मिट्टी का पानी है वो बाहर बह जाता है, और जो शुद्ध विशुद्ध जो जल शरद ऋतु में गिरता है उससे वो जलाशय भर जाते हैं, और जलाशय एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। इसकी तुलना हमारे हृदय से की गई है। हमारा हृदय भी काम क्रोध इत्यादि से भरा हुआ है, परंतु जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हरिनाम कीर्तन जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तो पहले के काम क्रोध वो बाहर निकल जाते हैं, जैसे मिट्टी वाला पानी एक तालाब से बाहर निकलता है, और हरिनाम रूपी जो शुद्ध जल है उससे हमारा हृदय बिल्कुल भर जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप देखेंगे भागवतम का 10वां स्कंद में एक अध्याय दिया है, उसका शीर्षक है शरद ऋतु का वर्णन। उसमें बिल्कुल यही समझाया गया है कि कैसे शरद ऋतु में सब जगह स्वच्छता आ जाती है, और स्वच्छता आने के लिए वो जो मैला पानी है उसको पहले बाहर निकलना होगा। जैसे जैसे शुद्ध पानी प्रवेश करता है, वैसे वैसे मैला पानी उस तालाब से बाहर निकलता रहता है, और अंततः कुछ समय पश्चात वो तालाब एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो शरद ऋतु का आप देख सकते हैं, आप जब दिन में कि 10वां स्कंद खोल के आप उसमें पठन करिएगा, शरद ऋतु का वर्णन। शरद ऋतु में वर्णन में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण उस अध्याय में दिए हैं। जैसे कि एक उदाहरण मेरे को स्मरण आता है
कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो साधु बन जाते हैं, तथाकथित साधु बन जाते हैं, परंतु उनका जो चरित्र और उनका जीवन है वो बिल्कुल उनकी शिक्षाओं के विपरीत होता है। तो उनकी तुलना की गई है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं बारिश के समय जो चमकते हैं, जुगनू जिनको बोलते हैं, तो वो जब चमकते हैं तो सब लोग को आकर्षण करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर रूप से ये कीड़ा चमक रहा है और उड़ रहा है, सब लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और बड़े विस्मित आश्चर्य में आ जाते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे कीड़े कैसे चमक रहे हैं। तो उनको उस प्रकार के जो साधु हैं, जो जिनका जीवन बिल्कुल भी शिक्षाओं के विपरीत चलता है, साधु के नाम के साधु हैं, वो किसी तरह से चरित्र वाले साधु नहीं। फिर उसमें बताया है 10वें उस अध्याय में शरद ऋतु के वर्णन में कि जब सूर्य का उदय होता है तो ये सारे जो कीड़े हैं उनका प्रकाश एकदम धूमिल हो जाता है, एकदम फीका पड़ जाता है। तो ये सूर्य है भगवान के विशुद्ध भक्त। यहाँ पूरा जो आप देखेंगे तात्पर्य, इसमें भगवान के शुद्ध भक्तों का ही वर्णन दिया प्रभुपाद ने। यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने ये वर्णन दिया है कि कैसे भगवान के जो विशुद्ध भक्त होते हैं ना सिर्फ अपना उद्धार करते हैं वो, परंतु पूरे जगत को पवित्र करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पे जैसे नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि का वर्णन हुआ है। तो नारद मुनि तो भगवान के शक्तियावेश अवतार हैं, भगवान ने स्वयं उनको शक्ति प्रदान की है कि वो किस प्रकार से इस भागवत का प्रचार जा जाके जन जन को करें। और हमने देखा है नारद मुनि के शिष्यों में श्री प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और ये मृगारी, प्रचेता, बहुत सुंदर रूप से उन्होंने प्रचार किया। तो यहाँ पे ये तीनों जो पैराग्राफ दिए हैं उनमें सिर्फ शुद्ध भक्तों की चर्चा हुई है। इसके लिए हम क्या सीखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है कि सिर्फ एक शुद्ध भक्त इस जगत के सारे पतित जो जीवात्मा उनका उद्धार कर सकता है। शिल प्रभुपाद को उदाहरण से हम समझते हैं कैसे एक शुद्ध भक्त ने जाके पूरे विश्व में कृष्ण भावना आंदोलन की क्रांति ला दी। और आज का जो युग है जहाँ पे मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य प्रतुता, सारे जो व्यक्ति आपको मिलते हैं वो मंद हैं, भक्ति के लिए बहुत आलसी हैं और सुमंद हैं, मतलब कि भक्ति की जो भी चर्चा है उनके समझ में नहीं आती है वो, क्योंकि मन बहुत कलुषित है, अनेक अनर्थों से काम क्रोध लोग भरे हुए इतने हैं कि भक्ति की कोई चर्चा समझ में नहीं आती। सुमंद, मंद भाग्य और भाग्यहीन है। और उनको कोई भी, जैसे हमने चर्चा की, ये जो तथाकथित जो भी साधु हैं, जो चरित्रहीन साधु हैं, वो उनको किसी प्रकार से बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। और इस प्रकार से रिप्रदुता, हमेशा उनका मन जो है व्यथित रहता है, हमेशा मन एकदम विचलित रहता है, कभी मन की शांति नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से जो साधु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस प्रकार से जीवों का बिल्कुल उद्धार कर सकते हैं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है हम लोगों के लिए कि जन्म सार्थक करी, करो परोपकार, हमारा आज्ञा हुई तारे देश, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान चैतन्य बोलते हैं कि हम लोगों के लिए ये शिक्षा है कि जिसको भी हम मिले, भगवान जो भी अनुकूल है, ऐसा नहीं किसी भी प्रतिकूल व्यक्ति के पास जाना है, जो भी अनुकूल है कृष्ण भावनामृत के लिए, जिसको भी मिले, जा रहे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। और कृष्ण उपदेश कब दे पाएंगे हम, उसके लिए बहुत सुंदर श्लोक आया, जन्म सार्थक करो। पहले शिल प्रभुपाद का पुस्तक का अच्छे से अध्ययन, उसको अपने जीवन में उतारना, और भगवान के नाम का गंभीरता से श्रवण, जन्म सार्थक करी। उसके बाद करो परोपकार, मतलब जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्तों की बहुत चर्चा की है यहाँ पे। हाँ। तो शुद्ध भक्तों में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 6.3.20, जहाँ पे यमराज जो है, जब यमदूत अजामिल को ले नहीं पाए और विष्णुदूत ने उनको उनसे बचाया, तो यमदूत वापस गए यमराज के पास और पूछे कि ऐसे कैसे
आपसे शक्तिशाली कौन है? तो यमराज बोले कि मुझसे शक्तिशाली मेरे परम आराध्य देव भगवान श्री विष्णु है। और उन्होंने बताया कि हम 12 महाजन हैं जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनमें से कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनका, भीष्मा, बलिर, वैसाखी, वयम। ये जो 12 नाम है, स्वयंभू भगवान ने बताया, इन्होंने यमराज जी ने बताया। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, कुमार 4 कुमार, कपिल मुनि, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैसाखी मीन्स व्यासदेव, वैसाखी सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं वो, और वयम मीन्स मैं स्वयं, स्वयं यमराज। तो ये 12 महाजन है। इसमें एक शिल प्रपात के प्रवचन में बताते हैं कि इन 12 महाजन में सभी ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं है। इसमें बहुत से आपको गृहस्थ मिलेंगे, जैसे स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयंभू, शंभु शिव जी, और उसके बाद प्रहलाद महाराज, जनक देव, बलि महाराज इत्यादि बहुत से गृहस्थ भक्त भी आपको मिलेंगे जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी आश्रम के अंतर्गत भक्ति नहीं आती है कि कोई आजीवन ब्रह्मचारी या सन्यासी है सिर्फ कोई भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी हमें पूर्णतया से, अगर हम गृहस्थ जीवन का सही रूप से पालन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने गृहस्थ जीवन के मध्य में रखते हैं, तो हम भी शुद्ध भक्तों का अनुसरण कर सकते हैं। इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे 7वें गोस्वामी जाने जाते हैं, उन्होंने बताया, और वो स्वयं गृहस्थ है, उनके 10 संतान हुई है, 10। वो बताते हैं कि जब मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि वो एक मजिस्ट्रेट की सेवा में थे, वहां पे इस प्रकार की नौकरी करते थे अंग्रेजों के वहां, तो बोलते हैं कि गोलोक भया ग्रहे गोलोक भया, जब मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा पूरा परिवार भगवान की सेवा में युक्त है, तो मेरा घर घर नहीं है, वो लोग गोलोक वृंदावन बन जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक आशा का किरण है कि गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। आगे देखिए, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया इस तात्पर्य में कि अ, इसमें चर्चा की है दूसरे पैराग्राफ में, कि दूसरे जो उपाय हैं हृदय शुद्धि के, उसमें बताया कि ज्ञान का और योग का मार्ग जो है वो खुद का हृदय तो शुद्ध कर सकता है, परंतु भगवान की दिव्य भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वे जो भी उस भक्त के संसर्ग में आते हैं, सामान्य जन, वो भक्ति के द्वारा वो भक्त उनको भी शुद्ध कर देते हैं। तो इसमें जब हम ज्ञान और योग की बात करते हैं, तो ज्ञानी और योगी हम देखते हैं कि प्रोपाल बताते हैं कि सीढ़ियां हैं। जैसे योगा की अलग अलग स्तर है, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो जो भक्ति योग है, इसमें ज्ञान और अष्टांग का जो भी फल है, जो भी इसका लाभ होता है, वो स्वयं निहित है। यहाँ पे प्रभुपाद ने बता भी दिया है। इसलिए कभी नहीं समझना चाहिए कि भक्ति योग किसी से कम है, क्योंकि कई बार ये जो ज्ञानी और योगी होते हैं वो बताते हैं कि भक्ति का योग जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भावुक लोग हैं, जिनको इस प्रकार से ज्ञान और योग का जो, जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, जो इसका तथ्य है, उनको ध्यान नहीं है। सिर्फ भगवान से अपने भाव का संबंध करते हैं और जानते नहीं कि भगवान को, पर ये सत्य नहीं है। शिल प्रोपा समझाते हैं
कि सबसे पहले अगर हमें भगवान की सेवा युक्त होना है तो हमें समझना होगा भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। ये तीन प्रश्नों का जब तक उत्तर नहीं हमारे को पता है, हम भक्ति में ठीक प्रकार से युक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसका उत्तर भगवान श्री चैतन्य ने श्री सनातन गोस्वामी को दिया। उन्होंने भी यही प्रश्न किए, आमी के, मैं कौन हूँ। और उनको भली भांति पता था, क्योंकि वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, हमारे आराधनीय 6 गोस्वामियों से एक है। परंतु हम सब के लाभ के लिए उन्होंने भगवान चैतन्य से, जब वो राम के लिए मिले तो प्रश्न पूछा कि मुझे बताइए भगवान मैं कौन हूँ। और यहाँ पे जिनसे भी मिलता हूँ मुझे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मानते हैं, मुझे सब प्रकार का ज्ञान है, परंतु मेरा हृदय जो है वो त्रय ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन त्रय ताप से बहुत विक्षिप्त हो गया है, विचलित हो गया है। मुझे ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। देखिए, भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे उत्तम मार्ग है इस प्रकार के प्रश्न जो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाए, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ये जब शौनक आदि ऋषि ने सारे प्रश्न पूछे, तो श्री सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे बोला, मुने साधो पृष्ठो अहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। हे मुनियो, आपने मुझसे बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। मुनियो साधु प्रश्न भवद्भिर लोक मंगलम, क्यों? क्योंकि इस पूरे जगत का कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछे आप। इस प्रश्नों का जो उत्तर आएगा उससे सभी जन को लाभ मिलने वाला है। ये कृष्ण संप्रश्न, और ये जो प्रश्न है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और इन प्रश्नों को करने से और उनका उत्तर पाने से ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, जो आत्मा है वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाती है इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से। तो इस प्रकार से जो कि ज्ञानी और योगी होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण नहीं ली है अपने ही बल पे। जैसे दो प्रकार से हम समझते हैं कि जो न्याय है, जो गौतम ऋषि ने न्याय दिया है, जो 6 प्रकार के जो अलग अलग फिलॉसफीज हैं, उसमें एक है न्याय। तो उसमें गौतम ऋषि ने बताया कि मरकट न्याय और मार्जर न्याय। तो मरकट न्याय जो है वो ज्ञानियों और योगियों का न्याय है। उसमें क्या होता है कि जो बंदर होता है मरकट, उसका जो बच्चा होता है वो स्वयं का प्रयास करता है, माता से वो चिपका रहता है, उसको पकड़ के रखता है। तो अपने स्वयं के प्रयास से वो लोग ज्ञान और योग के मार्ग पे बढ़ते हैं आगे। उन्होंने भगवान का शरण नहीं लिया है, और जैसा जैसा वो उसमें प्रयास करते हैं वैसे वैसे उन्नति करते हैं। परंतु भक्ति का न्याय जो मार्ग है तो पूर्ण आश्रय का मार्ग है। जितना भगवान के शरणागत हम लोग रहते हैं उतनी ही उन्नति करते हैं। जैसे जैसे भगवान की कृपा मिलती है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि भगवान के शुद्ध भक्त तो पूरे जगत को वो पावन कर सकते हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं मार्जर न्याय। मार्जर न्याय मतलब, मार्जर मतलब बिल्ली का जो बच्चा होता है वो इतना आश्रित रहता है बिल्ली पे कि वो कुछ प्रकार से बिल्ली को पकड़ने का प्रयास नहीं करता है, परंतु इतना दीन होता है वो कि बिल्ली कृपावश उसको जिस प्रकार से इस स्थान से उस स्थान पे जाती है स्वयं उसको पकड़ती है। वो बच्चा सिर्फ कुछ नहीं करता है, बस बिल्ली के शरण में रहता है। वो बिल्ली उसको पकड़ती है अपने मुख से और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। वही बंदर का बच्चा होता है, उसको पूर्ण प्रयास करके माता से चिपकते रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ज्ञानी और योगियों का मार्ग समझते हैं मर्जर मरकट न्याय से, और भक्ति का मार्ग समझते हैं मार्जर न्याय से। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो ज्ञानी और योगी होते हैं उनका जो हृदय है पूर्ण शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा के बिना हमारे हृदय से पूर्ण कल्मश नहीं निकल पाते।
तो प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे उनका हृदय तो शुद्ध होता है, परंतु पूर्ण शुद्धता के लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो वो किसी भी जीवात्मा के बस की बात नहीं है। भगवान की महामाया शक्ति इतनी शक्तिशाली है इस भौतिक जगत में कि गीता में भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर दिए है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो तीन गुणों वाली आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तो क्लेश है। तीन गुणों वाली मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुणों वाली जो मेरी माया शक्ति है, देवी ऐसा गुण मम माया दुरत्यया। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरी माया को पार पाना नामुमकिन है, अत्यधिक कठिन है, परंतु मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है माया में तामता है, वही माया को कर पाते हैं। तो ये जो योगी और जो ज्ञानी है वो भगवान की शरण में कभी नहीं जाता है। एक शुद्ध भक्त ही भगवान की पूर्णतः आश्रय शरण ले सकता है और इतना शक्ति प्रदत्त हो जाता है, जैसे नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, कि वो पूरे जगत के जो बद्ध जीव है उनका उद्धार कर सकता है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि पहले तो हमने ये जो पैराग्राफ में पढ़ ली, तीसरा पैराग्राफ में लिखा है कि एक गंभीर प्रयास श्रीमद् भागवतम का श्रवण का, उससे ही एक जीवात्मा का जो भगवान के साथ संबंध है वो प्रकट होता है। और जो 5 प्रकार के जो रस, मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं, तो 5 मुख्य रस हैं, जैसे कि शांत है, और फिर दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है और माधुर्य रस। ये 5 रस हैं। इसमें से किसी एक रस में वो भक्त भगवान की सेवा में युक्त होता है। तो प्रभुपाद से एक बार प्रश्न पूछा गया उनके शिष्य के द्वारा कि मेरा कौन सा रस है प्रभुपाद, बताइए मैं किस रस में भगवान की सेवा में युक्त था, तो कब ऐसे में कब इस चीज को समझ पाऊंगा। तो प्रभुपाद ने बोला, इसका चिंता करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ये हमारा नित्य संबंध है भगवान का, जो अभी हमारा हृदय के कलुषित, जैसे यहाँ पे बताया कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से ढक चुका है। इस कारण भगवान का संबंध जो है, जैसे एक समझिए प्रहलाद महाराज ने उदाहरण दिया कि एक लोहा होता है, चुंबक होता है, तो लोहा को जैसे चुंबक के साथ में लाते हैं, वो तुरंत जो लोहा है वो चुंबक की तरफ खींचता चला जाता है। परंतु अगर लोहे में जंग लग गया है, जंग मतलब ये सारा कलमश, काम, क्रोध, लोभ, मोह से हम ढके हुए हैं, तो लोहे को चुंबक के कितना भी पास ले जाइए, आकर्षण नहीं आएगा। उसके लिए लोहे का जंग उतरना बहुत जरूरी है। उतरते ही स्वतः हम लोग भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और एक जो भेद है वो ज्ञानी और योगी और भक्त में ये भेद है कि भगवान स्वयं भक्तों का पर्सनली, इसमें प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में लिखा भी है, एक स्थान पे आप पढ़ेंगे कि पर्सनली ए डिवोटी इज टेकन केयर बाय लॉर्ड। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय का बहुत सुंदर 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों का जो भी जरूरतें हैं उनका मैं पूर्ण खुद ध्यान रखता हूं। वो सुविधा ज्ञानियों और योगियों को प्राप्त नहीं, सिर्फ भक्त को प्राप्त। क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्तिमय सेवा में युक्त होते हैं, उनका जो भी है उनके पास उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो कमियां हैं उनको मैं पूरी करता हूं। इसमें एक अर्जुनाचार्य की बहुत सुंदर कथा, हमारा समय नहीं है, परंतु वहां पे भगवान स्वयं आगे बताए कि कैसे, जब अर्जुनाचार्य ने ये श्लोक पढ़ा तो लगा कि भगवान स्वयं क्यों, किसी को भेज देंगे, अपनी शक्तियां हैं, सारा जगत उनकी शक्तियों से चलता है।
महामाया इस पूरे जगत को नचाती है। अर्जुनाचार्य को लगा कि भगवान कैसे आएंगे खुद, तो स्वयं भगवान आए। और उसको वो कथा लंबी है, उसका चर्चा नहीं कर सकते। ऐसे अकबर बिल की कथा भी है कि कैसे अकबर ने भी बोला कि आपके भगवान स्वयं क्यों आएंगे, अपने दूत को भेजेंगे। दूत को भेजते हैं भगवान, उन्होंने शिल प्रभुपाद को भेजा हमारे लिए, परंतु स्वयं में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक है। परंतु इन श्लोकों को समझने के लिए हमें चौथे अध्याय का 9वां श्लोक समझना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इस पे इतना प्रभुपाद जी और अन्यों ने इस पे प्रवचन दिए हैं। वो 9वां श्लोक कौन सा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये श्लोक तो आपको पता होगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय का कमी है। बस इसको अब कंप्लीट कर रहे हैं, समय हो गया ऑलरेडी। तो जहाँ पे यहाँ कलमश की बात होती है, देखिए अंतिम जो पैराग्राफ है यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हृदय की शुद्धि है वो ज्ञान या योग से कुछ समय के लिए वो दूर हो सकती है। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक पानी में रसायन डाल दिया, केमिकल डाल दिया, उस प्रकार से। परंतु एक बहुत बड़ा एक जलाशय है, हमारे हमारे जो अनर्थ है इतने ज्यादा हैं और इतने पुराने काल से वो इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए तो जरा सा उस पानी को हिलाते हैं, तुरंत काम क्रोध लोग बाहर निकलने लग जाते हैं। कभी बोलते हैं जपा करते हैं तो भी हमारे हृदय की शुद्धि नहीं हो रही है। तो यही वहां पे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक पानी के अंदर, जब पानी में बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं, उसको जब इस प्रकार से हम हिलाते हैं तो उसमें हमारे सारे अनर्थ बाहर। तो जपा हमारे हृदय में जाके जब अशुद्धियों के ऊपर कार्य करते हैं तो सारे बाहर निकलते हैं। तो एक उदाहरण इस प्रकार से दिया कि जब करते हुए भी क्यों अनर्थ हमारे बार बार प्रकट होते हैं, उसका कारण ये है। और फिर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति मई सेवा भगवान के प्रति सिर्फ एक ही कारण है जिससे हृदय को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरे जो उपाय हैं वो बहुत ऊपरी ऊपरी स्तर पे शुद्धता लाते हैं, और हमेशा ये खतरा रहता है कि वो वापस से वो गंदगी है वो वापस से वहां पे जमा हो जाएगी। परंतु भागवतम का नित्य श्रवण करने से, और यही सबसे उत्तम उपाय है कि हम इस प्रकार का जो भ्रम का जीवन जीते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये अनर्थ इतने भयानक हैं कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में डांटा। जब अर्जुन पंडित बनने का प्रयास कर रहे थे पहले अध्याय में, तो दूसरे श्लोक शुरुआत में दूसरे श्लोक में भगवान बोला कुतस्ता कश्मलिदम, ये गंदगी आई कैसे तुम्हारे, हे अर्जुन, जब तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो और युद्ध से जी चुराते हो। कुतस्ता कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम, इतना भयानक स्थिति है अभी युद्ध की, और इसमें तुम इतने कायर बन गए। अनार्य जुष्टम असर्गस्य, और ये आर्यों को शोभा नहीं देता ये सब, और अकीर्ति, और उससे तुम्हारी बहुत अकीर्ति होने वाली है। तो इस कलमश का उपाय दूर करने का, अब हम बस समाप्त कर रहे हैं, अंतिम श्लोक है। इस कलमश को दूर करने का उपाय भगवान चैतन्य ने श्री शिक्षाष्टकम में बताया है। क्या श्लोक है? पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, कि ये जो महामंत्र है, इसका जो जाप है, वो चेतो मतलब जो हृदय में, हृदय का जो दर्पण है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसको रगड़ रगड़ के साफ करता है। जो उसके ऊपर अनंत काल से जो गंदगी जमा हो गई है, उस दर्पण पे, उस शीशे पर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, भव महादवाग्नि निर्वापणम, और ये संसार में जो त्रय ताप की जो अग्नि है उससे सब लोग जल रहे हैं, उसका एक ही उपाय है
भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांतिपूर्वक श्रवण किया। और अभिराम प्रभु जी आगे के लिए मार्गदर्शन करिए हमें। जगन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಾಮ ಅಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಭು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಕುछ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने बोला हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बोला ना कि शरीर शरीर आत्मा है। हम इस बात को कैसे समझे? शरीर को शरीर ना समझ के आत्मा कैसे समझे? थोड़ा मुझे बताइएगा। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। क्योंकि भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी यही है कि हम अपना स्वरूप जाने कि हम हैं कौन। तो देखिए, ये विषय वस्तु जो है ये भगवत गीता के श्रवण से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान की वाणी है। और भगवान ने शुरुआत में दूसरे अध्याय में, जिसको प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवत गीता का सार है, उसके पहले 30 श्लोक का हम जब पठन करते हैं तो उसमें हम लोग समझते हैं कि भगवान संदेश क्या दे रहे हैं। उसमें 20वां श्लोक देखिए, उसमें क्या बताया भगवान ने। न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता नायम होया, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीर। ये भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। न जायते मृत्यु, इस आत्मा का न जन्म है ना मृत्यु है। नायम भूत्वा भविता, न पहले वो कभी अस्तित्व में आया था न भविष्य में आएगा, हमेशा से अस्तित्व में रहा है। हम सनातन हैं। अजो नित्य शाश्वतो हम पुराणो, हम शाश्वत हैं और अनादिकाल से हमारा अस्तित्व है। न हन्यते हन्य माने शरीर, और शरीर के मरने के बाद भी, न मरने का मतलब नष्ट होने के बाद भी हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, ना अर्जुन को नहीं बोले। ये हमारे लिए संदेश है कि अर्जुन तो बिल्कुल इस ज्ञान से परिपूर्ण है, भगवान के विशुद्ध भक्त है। ये ज्ञान हमारे लिए, तो इसलिए हमें गीता का कम से कम ये दूसरा अध्याय का पहला श्लोक, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसमें जो 20 श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे भगवान और गुरु की कृपा से हमें ये बिल्कुल बात समझ में आने लगेगी कि हम ये शरीर नहीं है, हमें आत्मा है। और देखिए, प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य से प्रश्न पूछा है हम सबके लिए। इतना प्रयास क्यों चल रहा है? अर्जुन को भगवान ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? सनातन गोस्वामी को ये ज्ञान चैतन्य महाप्रभु क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहली सीढ़ी है जिसको हम अध्यात्मवाद बोलते हैं। इसके लिए हमें यही प्रयास करना होगा कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में, आप प्रभुपाद के प्रवचन सुनिए, आप 10 प्रवचन सुनेंगे तो उसमें 8 प्रवचन आपको ऐसे मिलेंगे प्रभुपाद के जिसमें वो बार बार ये बात बोलते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो अब इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत क्या है? ये प्रश्न होगा कि कई बार उस विषय वस्तु भी नहीं है ये कि उसको बोला जाए, तो प्रभुपाद ये सुनिश्चित करते हैं कि इसको हम वो बार बार बोलते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी स्थिति पता है कि आज हमारी जो स्थिति, हम अपने आप को शरीर ही माने बैठे हैं। भक्ति में भले ही हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमें अपना स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ है कि हम विशुद्ध आत्मा है। भले ही हम
एक पुस्तक पढ़ के समझते हैं कि ऐसा है, पर हमारा जब जीवन में जब उसको उतारने की बारी आती है तब हम शारीरिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। पढ़ते हम जरूर हैं और समझ भी लेते हैं, जैसे ज्ञान और विज्ञान प्रभाव होता है। ज्ञान है हमें कि हम एक आत्मा है, विज्ञान मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, उसको विज्ञान बोलते, वो अभी तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें यही है कि हमारा जो अध्ययन है उसको हमें और गंभीर करना होगा, भगवान और गुरु से प्रार्थना करनी होगी कि हमें कृपया मार्गदर्शन दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार पाए। और इसके अलावा जो भगवान का जो शुद्ध नाम है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के नित्य जप से हमारे हृदय में न सिर्फ ये ज्ञान आएगा कि हम विशुद्ध आत्मा है, परंतु उससे भी आगे बढ़ के ज्ञान आएगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये ज्ञान जब हम समझ लेते हैं हम आत्मा, उसके बाद हमारी पूर्ण तरह से हमें ज्ञान प्रकाशित होता है कि हम ना सिर्फ आत्मा है, ये आत्मा है, ये तो योगी भी समझता है, ज्ञानी भी समझता है, वो अध्यात्मवादी वो भी हैं, परंतु ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमें ये ज्ञान दिया है चैतन्य महाप्रभु का जो माध्यम बन के, कि हम ना सिर्फ एक विशुद्ध आत्मा है, हम भगवान श्री कृष्ण और उन भक्तों के दास हैं। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, जो गोपियों के भरण करने वाले, उनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चरण कमल के, गोपी भर्तुर पद कमलयोर, उनके चरण कमलों के हम दास नहीं हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके भक्तों के हम दास हैं। दास दास दासानुदास, उनके दासों के दास। ये स्थिति परिपूर्ण स्थिति। और हरिनाम भागवतम गीता पठन इतना शक्तिशाली है, श्रद्धा के साथ बढ़ना होगा, सिर्फ पठन नहीं, अदो श्रद्धा। भक्ति की शुरुआत है श्रद्धा से, साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है मनुष्य जीवन की, भगवान के प्रति प्रेम, ये भक्ति हमें वहां तक ले जा सकती है। और इसका श्रील रूप गोस्वामी ने हमें 5 भक्ति के अंग बताए हैं, इसका हमें रोज पालन करना होगा, तो हम समझ जाएंगे हमारा स्वरूप क्या है। उसमें श्रीमद् भागवतम का पठन, ईर्चा विग्रह की सेवा, रोज उनकी आरती, हरिनाम का जप, भक्तों के साथ भक्तों की सेवा, और मथुरावास। मथुरावास मतलब कि अपने घर को, जैसे श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, अपने घर को हम मंदिर बनाएं। जब घर में घुसे हैं तो लगे ये घर नहीं है, ये तो गोलोक वृंदावन। ये 5 अंग का अगर हम पालन करेंगे तो ना सिर्फ हमें ये अनुभूति हो जाएगी कि हम विशुद्ध आत्मा है, परंतु हम उससे आगे बढ़ के भगवान के दासों के दासों के दासों के रूप में अपने आप को समर्पित कर देंगे। इतनी शक्ति इन 5 भक्ति के अंगों में है जो श्रील रूप गोस्वामी में। ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम।